Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in geography we are understanding about the India, its size and the location. Up to the last session we were just understanding the location of India in the world map. Right, we have seen that where India is located in the very first session. In the second session we understood about the importance of India's location on the world map, and in the third session, in the last session, we understood about the different things about the location of India. Right. And in the last session only, I say that now we are going to get into the India. Up to now, we have seen the India from outside. We have seen the India on the international borders, right? We understood about the India's location, the neighboring countries, which are the countries which are sharing the sea borders, which are the country which are sharing the land borders. We understood all of those things. In today's session, we are going to get into the India. We are going to understand about the India and its political divisions, right? But before going into that, it is necessary to have a cross check of all the things we have studied up to now. So in today's session, now we are going to understand that what we are going to study today. So here is a slide which is going to show the revision questions of the things what we understood up to now, right? So students, these are certain questions which are carried out from the NCERT textbook, right? You guys are following the SB. So here are the questions which we are going to practice at first, and then we are going to get further. So the first question comes over here is, my friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. मेरा एक दोस्त है जो एक कंट्री से आ रहा है कि जो कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता. तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल, और उसके साथ है तजिकिस्तान. सो the answer is already ticked over here. It is Tajikistan. But let's understand that Tajikistan is basically starting at the north side of the India. कश्मीर के ऊपर से तजिकिस्तान स्टार्ट होता है, लेकिन तजिकिस्तान और इंडिया के बीच में पतला सा लेयर आ जाता है अफगानिस्तान का, राइट? सो भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, राइट? बांग्लादेश हमारे ईस्ट में है, नेपाल भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तजिकिस्तान हमारे नॉर्थ में है, लेकिन वी आर नॉट शेयरिंग द बाउंड्री विद देम. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. द सेकंड इज, व्हिच आइलैंड कंट्रीज आर साउदर्न नेबर्स, राइट? कौन से आइलैंड कंट्रीज है जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं? तो वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो हमने लास्ट टाइम मैप में देखा था. देन राइट द नेम ऑफ टू वाटर बॉडीज दैट सेपरेट इंडिया एंड इट्स क्लोजेस्ट आइलैंड नेबर. हमारा जो क्लोजेस्ट आइलैंड नेबर है, राइट, वो कौन सा है? दैट इज श्रीलंका. और उसको इंडिया से अलग करने के लिए दो वाटर बॉडी वर्क करती है. वो कौन सी है? तो वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था, द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार. Then list the countries that form the Indian subcontinent. Indian subcontinent कौन कौन से कंट्री से बनता है, राइट? एक जो टेक्टोनिक प्लेट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उसके ऊपर कौन कौन से कंट्री है? सो दे आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. सो द क्वेश्चन arises, why that particular tectonic plate in the Asia is known as the Indian subcontinent? Because India is the biggest country situated on a same plate, right? ये जो सारे नेशन उसमें सबसे बड़ा इंडिया है, right? And most of the countries were the part of India, as if the Bangladesh, right, the Pakistan, they all were the part of the India, right? That's why it is known as the tectonic plate, as the Indian subcontinent. Then till the previous class we have learned about India in relation to the world. Now we will look at what is inside India. तो लास्ट क्लास जो हमारा था, यानी कि थर्ड सेशन तक हमने जो देखा वो क्या था कि हमने इंडिया को वर्ल्ड के रिलेशन में देखा, खास करके एशिया के अंदर इंडिया के नियर बाय, सिल्क रूट में इंडिया का जो इंपॉर्टेंस था वो देखा, राइट? इंडिया का वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखा. आज हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या है. तो आज से जो सेशन स्टार्ट होगा वो हमें बताएगा कि इंडिया के अंदर क्या है. तो इसके लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं. यहाँ पे दो स्कूल का एग्जांपल दिया गया है. तो पहला है स्कूल ए. स्कूल ए हैज 100 स्टूडेंट्स इन क्लास IX, यानी कि 9th स्टैंडर्ड में स्कूल ए के पास 100 स्टूडेंट्स हैं. They decide to have one classroom to teach and manage all 100 students together. उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक ही क्लासरूम रखेंगे, राइट? और एक ही क्लासरूम रखेंगे और उसी क्लासरूम में 100 के 100 बच्चों को बिठा के वहीं पे उसको समझाएंगे, वहीं पे उसको सिखाएंगे और वहीं पे उसको मैनेज करेंगे. तो ये स्कूल ए का डिवीजन था, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द स्कूल ए क्लास ऑफ 9 क्लासरूम. अभी हम देखते हैं स्कूल बी. तो स्कूल बी सेज इट हैज 100 स्टूडेंट्स टू इन क्लास 9, बट दे डिसाइड टू स्प्लिट देम इनटू 3 सेक्शंस. लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं रखते, हम 3 डिफरेंट सेक्शंस में रखते हैं, राइट? सो 9th A, 9th B and 9th C, these are going to be the part of them.
with around 33-34 students in each class. Right? अगर इक्वली डिवाइड करें तो 33.33 होता है. राइट? तो दो क्लास में 33 और एक क्लास में 34 हो जाएगा. तो हर क्लास में अगर 33 या 34 स्टूडेंट्स है, राइट, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम 33 या 34 स्टूडेंट को रख के 3 क्लास बना देंगे, 9th A, 9th B एंड 9th C. तो वापिस रिवाइज करते हैं. स्कूल ए के अंदर क्या था? स्कूल ए ने डिसाइड किया कि हम जो सारे 100 स्टूडेंट्स है उसी को एक ही क्लास में रख देंगे. और स्कूल बी ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. We are going to teach and manage them into 3 different sections, 3 different classrooms. So here the question arises: which school do you think would be able to teach and manage their class 9 students better and why? आपको क्या लगता है कि कौन सा स्कूल होगा जो अपने 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, और क्यों आप ऐसा सोचते हो? राइट? तो उसका आंसर जो है वो होगा क्या कि स्कूल बी जो है वो ज्यादातर अच्छे से स्टूडेंट को मेंटेन कर पाएगा. क्यों? क्योंकि स्मॉलर यूनिट्स और डिविजन्स आर इजियर टू मैनेज. अगर डिवीजन जितना छोटा होगा उतना आसानी से हम उसको मैनेज कर पाएंगे. राइट? द टीचर विल बी एबल टू प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन इफ देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स. अगर कम स्टूडेंट होंगे तो हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. राइट? मान लो अगर आपके ही क्लास में हम 70-80 स्टूडेंट्स को एक साथ रख दे तो इट वुड बी हार्ड फॉर मी टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. राइट? इट वुड बी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर क्वेरीज, क्योंकि हर स्टूडेंट की क्वेरी इंडिविजुअल होती है, तो मैं उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा. और उसके साथ जब पूरा मास होगा तो केओस भी ज्यादा होगा. तो जब मैं सिखा रहा हूं उतना क्वालिटी मैं नहीं दे पाऊंगा जितना क्वालिटी मुझे देना चाहिए, क्योंकि मास बहुत बड़ा है. राइट? तो जितना ही मास कम होगा, जितना स्मॉलर यूनिट होगा, उतने अच्छे से मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा. राइट? तो यही इंपॉर्टेंस है डिवीजन का. हमारा जो नेशन है बच्चों, वो भी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में डिवाइडेड है. यानी कि हमने पॉलिटिकल डिवीजन किया है हमारे नेशन का. तो अभी हमने ये सीखा कि कैसे अगर बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में हम डिवाइड कर दे, राइट, तो मैनेज करना इजी होता है. मान लो कि आज हमारे कितने स्टेट है, वो सारे स्टेट ना होते और सिर्फ एक ही किंगडम होता और एक ही राजा होता तो क्या होता? राइट? 6, 7, 8 में, राइट, आपने जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ा खास करके 7th स्टैंडर्ड में, तो तब नवाब थे. राइट? द डिफरेंट पीपल वर रूलिंग इन इंडिया, जो आपने हिस्ट्री पढ़ा. अब अगर मान लो कि मुगल सल्तनत जो थी उसने लास्ट में औरंगजेब के टाइम तक ऑलमोस्ट साउथ इंडिया को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उन लोगों ने कवर कर लिया था. राइट? तो तब वो क्या करते थे? तो वो दूसरे अलग अलग लोगों को वहां के तहसीलदार, राइट, या फिर कमांडर, ऐसे अलग अलग लोग अपॉइंट करते थे जो उसको मैनेज करते थे. दे यूज्ड टू गिव द फाइनल रिपोर्ट टू द किंग हु वाज देयर. तो एम्परर को सिर्फ फाइनल रिपोर्ट मिलता था. एम्परर वाज नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द स्पेसिफिक रीजन टू रूल. क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग थे जो मैनेज करते थे, उसका रिपोर्ट जाता था एम्परर को और फिर एम्परर उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस पास ऑन करता था. मान लो अगर सिर्फ एक ही एम्परर था और उसी ने पूरा कंट्री मैनेज किया होता तो इतने अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाते. जो उन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक जो उसने रूल किया तो वो रूल इजीली नहीं कर पाते. राइट? तो अगर आप स्मॉलर डिवीजन में अगर डिवाइड करते हो तो इट बिकम्स वेरी मच इजियर टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. सिमिलरली आवर नेशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. हमारा जो देश है उसको भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है. जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं गुजरात में. राइट? गुजरात में यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे कि दीव और दमन, जो भी कंबाइन हो चुके, पहले दोनों अलग अलग थे. राइट? तो दीव और दमन यूनियन टेरिटरी है. राइट? दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, राइट, जम्मू एंड कश्मीर है, जो भी यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है. राइट? सो उत्तरांचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है. ये जो सारे स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के अंदर इंडिया को डिवाइड करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो पूरा नेशन है, उस पूरे नेशन को अगर छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम बांट के उसके ऊपर रूल करें, उसके ऊपर गवर्न करें, राइट, तो गवर्नेंस वुड बी इजियर. राइट? तो पूरे देश को मैनेज करना, सारे स्टेट्स को डिफरेंट पीपल अरेंज मैनेज करते हैं और जब उसको जरूरत पड़ती है देन दे आर गोइंग टू द सेंट्रल अथॉरिटी. So this is the reason why the division of the nation into the states and the union territory is very much important, and that we learn from this basic example of the school. कि एक क्लास में 100 बच्चों को रख दिए और बाकी एक स्कूल है जो 100 बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो जो स्कूल 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करते हैं वो स्कूल बहुत ही अच्छे से और इजीली सबको मैनेज भी कर पाएंगे और अच्छा एजुकेशन भी दे पाएंगे. राइट? सो सिमिलरली India is divided into states and union territories to ensure that the government can manage the country efficiently.
एफिशिएंटली कंट्री को मैनेज करने के लिए डिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, राइट। सो अभी आगे हम एक और चीज देखने जा रहे हैं एंड दैट इज द कंसेप्ट टाइम, राइट। आपके SB6 के ऊपर दिखाया गया है, वो हम देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन मोर थिंग्स ऑन इट। सो बच्चों, आपके पास जो रिसोर्स बुक है यानी कि जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर आप ये पे देख पाओगे इट इज ऑन SB6 ऑफ जियोग्राफी, राइट। तो अगर आप इस पेज को क्लियरली देखें देन इट इज सेड दैट इट इज अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन कंसेप्ट टाइप 2, राइट। It is the political division of India. Independent India was formed by combining areas formerly under British rule and over 500 princely states. The Indian landmass was then divided into political units for easy administration. These units were of two types, states and the union territories. तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ब्रिटिश रूल जैसे ही एंड हुआ और इंडिपेंडेंट इंडिया बना, तब इंडिया को ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, राइट। सो पहले समझ लेते हैं कि स्टेट्स क्या होता है और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सो स्टेट्स आर डिवाइडेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन। स्टेट जो थे वो किसके आधार से डिवाइड हुआ था, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र जाओगे, राइट, तो वहां पे लोग मराठी बोलेंगे, पंजाब जाओगे लोग पंजाबी बोलेंगे, राजस्थान जाओगे लोग मारवाड़ी बोलेंगे, राइट, गुजरात में आओगे लोग गुजराती बोलेंगे, वेस्ट बंगाल में जाओ, राइट, तो वहां पे लोग क्या बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, राइट। तमिलनाडु में जाओ तो तमिल, केरला में जाओ तो मलयालम। दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ the language is spoken by the people in a particular region, the states were divided, right. The states have their own state level government. state level government खुद का होता है, जैसे कि हमारा state level government है गुजरात का। So currently Mr. Vijay Rupani is the CM, right. तो ये हमारा state level का government हो गया जिसे हम state government कहते हैं, और there are currently 28 states in our nation, right. आज की तारीख में हमारे नेशन में 28 states है। अभी देखते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होता है। Union territory, they are either joined India after independence or were too small to become independent state. ऐसी जो टेरिटरी थी जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ ज्वाइन हुई, या फिर बहुत ही छोटी थी कि जिसकी वजह से उसको स्टेट नहीं बनाया जा सकता, उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, डायरेक्टली उसके नीचे वो गवर्न होती है, राइट। सो they are currently 8 in number. Currently we have 8 union territories in the number. So which are they? Let's understand. So here is the list of the states, right. हमारे जो 28 स्टेट है, अगर हम पहले से स्टार्ट करें, मैप में आपको सारे के सारे स्टेट्स के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और मैप में भी वो लोकेट किया है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। आप अपनी बुक को इजीली देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, और ये समझ भी लेना बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फर्दर, राइट। सो हमारे स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, देन बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। These are the 28 states we have and these are the 8 union territories, Andaman and Nicobar Island, then Chandigarh, then Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, right. They all are combined now. At first they were different, but now they all have been combined at the time of making the union territory of Jammu and Kashmir and the, right. So at the time of combining the Jammu and Kashmir into the union territories, the Dadra and Nagar Haveli and the Daman and Diu, they were combined. Then the Lakshadweep, Delhi, Pondicherry, Ladakh, Jammu and Kashmir, right. These all are the union territories of our nation that you can watch and observe clearly. So I just want you to observe this for 2 minutes, right. Just pause the video for 2 minutes, open your SB6 and just read out this concept time and understand that very well. So students, in October 2019, that was the time when the state of Jammu and Kashmir was split into 2 new union territories. जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट था हमारा, राइट, उसको लेकर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी। सो 2019 में उसको स्प्लिट किया गया 2 यूनियन टेरिटरी में। उसमें से एक यूनियन टेरिटरी बना जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख, राइट। एंड दे बोथ आर बीइंग रूल्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, राइट. देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट ओवर देयर, इट इज डायरेक्टली बीइंग रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. And at the same time, the union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, they were different.
right? In Gujarat we have, in the location of Gujarat we have two union territories, Daman and Diu, right? And in Maharashtra it was Dadra and Nagar Haveli. So all the three different territories were combined all together, right? And they became the one union territory that is known as Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, right? It is known as that way. So now you have understood the map, you have seen the map clearly. So let us make some practice, right? These are the questions from the NCERT, right? But here are the questions, and we are going to understand using the SB4 only. The number of union territories along the western and eastern coast, right? Western और eastern coast में union territory कितने हैं, right? तो union territories along the western coast, अगर आप west side में देखोगे तो दमन, दीव और नागरा, दादरा एंड नगर हवेली आपको देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न कोस्ट में आपको पौंडीचेरी दिखने को मिलेगा, right? While these are along the mainland coast, you could also include Lakshadweep in the west and Andaman Nicobar Island in the east, right? तो वेस्ट में आप लक्षद्वीप और ईस्ट में आप अंडमान निकोबार को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो मेन लैंड के कोस्ट पे ही है. That's why you can add them too. Now, area wise, which is the smallest and which is the largest state? So Goa is the smallest. At first the Goa was the union territory, but then it became the state. So Goa is the smallest state in India on area wise, and Rajasthan is the largest state on the basis of area. You can see that by looking in the map at the SB4, right? Then the next question is the states which do not have an international border or lie in the coast. ऐसे स्टेट कौन से हैं जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, राइट? या फिर वो कोस्ट पे नहीं है. तो वैसे स्टेट बनेंगे हमारे हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़. हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट है वो या तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं या फिर कोस्टल एरिया में उसका बॉर्डर आता है, राइट? दैट आल्सो यू कैन सी इनटू द पॉलिटिकल मैप ऑन SB4. देन classify the states into 4 groups, each having common frontier sweep, right? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश. पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, राइट? इनके साथ जो फ्रंटियर्स यानी कि जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ऐसे 4 ग्रुप में आपको स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है. तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? पाकिस्तान इज बीइंग शेयर्ड विद द गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब. द स्टेट्स, नॉट द यूनियन टेरिटरीज. अगर यूनियन टेरिटरी होता देन द जम्मू एंड कश्मीर वुड आल्सो बी देयर, राइट? सो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. देन म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. और बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय और मिजोरम. ये जो 4 स्टेट हैं, ये जो डिवीजन है, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर्स विद द डिफरेंट states, different countries, right? And here it is the division of that. So students, आज के सेशन में जो सिखाना था वो यही था कि सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है, right? Why it is important to divide the nation into the different states and the union territories. उसके साथ हमने ये भी देखा कि we have divided our nation into 28 states and the 7 union territories, right? Sorry, 8 union territories. तो ऐसे हमने हमारे नेशन को डिवाइड किया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. क्यों? सो दैट वी कैन मैनेज देम बेटर, राइट? इजीली मैनेज हो पाए, कंट्री को आसानी से हम चला सके, उसका मैनेजमेंट बेटर होगा. वी कैन टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट पर्सनली, राइट? एंड वी कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट रीजन बाय फोकसिंग ऑन द डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट एरियाज, राइट? तो इसी के लिए हमने डिवीजन किया था. तो आज हमने जो सीखा दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन, अबाउट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज. उसका डिफरेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हमने देखा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, राइट? और यूनियन टेरिटरी क्यों फॉर्म हुए थे ये भी हमने देखा था. सो नाउ इट इज टाइम फॉर द होमवर्क एंड द सेल्फ प्रैक्टिस. तो होमवर्क में आपको यहाँ पे SB7 जो है, उस SB7 के अंदर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3.1 एंड 3.2. These two are going to be your homework for today. Let me mark it for you guys so that you can understand them clearly. So, ये क्वेश्चन नंबर 3.2 और ये जो क्वेश्चन नंबर 3.1 है, these are going to be your homework for today. The first question is, what is the main difference between states and union territories? In the previous slide only, when I was teaching you about the political division, right,
दैट पॉलिटिकल मैप जो मैंने आपको दिखाया था वहीं पे उसका डिफरेंस और मीनिंग लिखे थे, एंड व्हाई वर द यूनियन टेरिटरीज फॉर्म, यूनियन टेरिटरी को क्यों फॉर्म किया, ये भी हम इस सेशन में देख चुके हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, वो मुझे भेजना है, राइट। इट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडे। सो गाइस, that was all for today's session. In the next session we are going to get a bit deeper into the India only, right? So that's it for today's session. Now it is time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, right? And don't forget to share your homework, right? Take care of yourself as well as your family. Thank you.